کراچی میں خوفناک آگ، لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کپڑوں کی فیکٹری میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ آگ سے فیکٹری کی چھت گر گئی۔ فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں اور اسناکل آگ بجھانے میں مصروف۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 2 فائر فائٹر زخمی۔ لانڈھی واٹر ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ۔ اطراف کی فیکٹریز میں موجود فائر ٹیموں کو بھی طلب کر لیا گیا۔ حکومت کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی سے متعلق کاغذات حوالے کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے اہم ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، سیکورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے پراپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے۔ واضح کیا کہ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان 2 سال میں کرغزستان سے تجارتی حجم $200 ملین تک لے جانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی ہوا۔ کانکنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان خوشگوار برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کرغزستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ توانائی، تجارت، روابط کے فروغ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ کرغز صدر صادر جاباروف نے کہا کہ پاکستان کرغزستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ معاہدہ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے صدر صادر یاپروف کی ملاقات۔ تجارت، توانائی، مواصلات اور دیگر مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال بعد کرغزستان کے سربراہ کا پاکستان کا دورہ نہایت خوش آئند ہے۔ کرغز صدر کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے اور باہمی اشتراک کے نئے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ کرغزستان کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں کرغزستان کے صدر نے پودا بھی لگایا۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اجازت نہ مل سکی۔ سہیل خان آفریدی داہگل ناکے کے مقام سے واپس روانہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج 10ویں بار بانی سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی۔ کیس پر سماعت سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان پیش وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کے منصفانہ تقسیم کا مشن۔ قومی مالیاتی کمیشن کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی شرکت۔ پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آئندہ اجلاس جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ یہ فورم آئین پاکستان کے آرٹیکل 150 کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ این ایف سی سے متعلق قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل مطالبہ ہے۔ ہم یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ گروپس بنیں گے، وہ مالیاتی امور کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ این ایف سی اجلاس میں کے پی کے کا مقدمہ سامنے رکھا ہے۔ اجلاس میں بتایا قبائلی اسلحہ کو ضم تو کیا گیا لیکن ان کا شیئر ہمیں نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ نہ دینا غیر آئینی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا 8 دسمبر تک سب کمیٹی بنے گی۔ این ایف سی کا اجلاس جنوری کے وسط میں ہوگا۔ وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے معاملے پر اٹارنی جنرل سے رائے لینے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے مالی مطالبات کے بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگی۔ این ایف سی اجلاس میں سندھ کا وفاق کو اخراجات کی تفصیل دینے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں سے 5% صوبوں کو دینے کی مخالفت۔ صوبوں میں ٹیکس وصولی کے معاملے پر بھی ورکنگ گروپ قائم ہوگا۔ سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام اور فنڈز کے تعین پر گروپ بنے گا۔
पाकिस्तानों को बैरूनी कर्जों की वापसी में बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट वापसी की मुद्दत बढ़ा दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट में मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही है। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला, बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कलअदम BLA BLF के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज किए जाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशतगर्दी में मुलविस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी करने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 बरस के मुलजिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसे मुकीम रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा, DG रेंजर सिंध की जेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सूबे खुसूसन कराची में सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक करेंगे। कराची के बल्दियाती इदारों से खुले मैनहोल्स की तफसीलात तलब। सिंध हाई कोर्ट में खुले गटर में बच्चों के गिरने के मुतालिक दरख्वास्त। तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतजाम के कौन से रेगुलेशंस होते हैं, अदालत का इस्तफसार। इदारों को शहरियों के लिए मरबूत हिफाजती लाहेमल तश्कील देने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, हम इससे बरीउत ज़िम्मा नहीं है और हम कल मेयर साहब ने जाके उस पर माफ़ी भी मांगी है और इस पर सख्त एक्शन भी किया गया है। क्योंकि जिसके इल्म में भी ये बात आई थी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो DC को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो SSP को हटा दिया गया। KMC ने अपना मलबा डाला उसके ऊपर टाउन के ऊपर या वाटर बोर्ड के ऊपर, तो KMC के सीनियर अफसरान को एक्शन हुआ है, मुअत्तल कर दिया गया है। कान्हे नीपा पर हम सब जिम्मेदार हैं। पार्टी क़यादत ने बोला, हर मैनहोल पर एक बंदा लगा दो। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लाइन थी, वो लाइन थी, जो भी लाइन थी, जिसको भी उस मैनहोल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया, फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई भी नहीं की गई। DC, SSP समेत जिसकी गलती थी सबको मुअत्तल कर दिया गया। कराची में II चंद्रिका रोड पर चिंची रक्शे नहीं चलेंगे। 26 साहम शाहराहों पर 2+1 और 4+1 रक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर शहर में रक्शों की आमदोरफ्त महदूद करने का बाकायदा फैसला किया गया। खिलाफवर्जी की सूरत में चिंची रक्शा ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज होगा। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं कि उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। मेरे घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। पुलिस ने बताया कि 5000 कम उम्र ड्राइवर 1 वे की खिलाफवर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं और जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया है कि लोग खिलाफवर्जी न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कूड़े करकट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहती हैं सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मुआवजे से कम नहीं। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा वो जुर्माने की सज़ा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियाँ भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। इजलास में फैसला, कमर्शियल एरिया से सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। कोहाट में 2 ग्रुपों में तसादुम, लाची का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मुल्जिमान फरार। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हसन, जाहिर, जमान, गफूर और मामूर के नाम से कर ली गई। फायरिंग में एजाज और हमाद जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
कराची में चंद घंटों के दौरान हैवी ट्रैफिक से दूसरा हादसा। कश्मीर रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मरने वाले शहरी की शनाख्त न हो सकी। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से हाथ धो बैठा। एयर इंडिया हादसे के शवाहिद गायब। अमरीकी तहकीकाती इदारों के हाथों मोदी सरकार का पर्दा चाक। एयर इंडिया तैयारा जानबूझकर गिराया गया। दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफात। अमरीकी सहाफ़ी और साबिक CIA एहलकार सारा एडम्स के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती टीम को ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई नहीं दी गई। हादसा पायलट की लापरवाही के बायस पेश आया। कॉकपिट में फ्यूल सप्लाई सिस्टम बंद किए जाने के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी माहिरीन को मलबे की तस्वीर लेने और लेबॉर्ट्री में डेटा तजिए से रोका गया। तैयारी की तबाही में इंसानी मुदाखलत का इम्कान मौजूद है। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का रफा क्रॉसिंग सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। मिस्र ने एक तरफा बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल बहाली की अपील। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के खिलाफ वर्जियां जारी। शुहदा की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। मौसमियाती तब्दीली ने एशिया के 5 ममालिक में तबाही मचा दी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और मलेशिया में शदीद बारिशों और सैलाब। इंडोनेशिया में समात्रा के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने 770 अफराद की जान ले ली। 463 लापता। श्रीलंका में 465 अफराद हलाक और 366 लापता। थाईलैंड में शदीद सैलाब से 176 अफराद हलाक और 2 मिलियन लोग मुतासिर हुए। हुकूमत का कर्जों में छूट और रिहायशी मुरम्मत के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मलेशिया में भी रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को हरा दिया। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। गेम्स में कल 3 खेलों के मुकाबले शुरू होंगे। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी T20 में कप्तानी की दौड़ से बाहर। सलमान अली आगा वर्ल्ड कप तक T20 के कप्तान बरकरार रहेंगे। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने एक साल के दौरान सबसे ज्यादा 21 T20 मैचेस जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च 2026 में शेड्यूल। मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद टॉप लेवल स्क्वॉश टूर्नामेंट की वापसी। PSA वर्ल्ड टूर का गोल्ड इवेंट कराची ओपन 6 जनवरी से 11 जनवरी तक कराची में खेला जाएगा। इवेंट में दुनिया स्क्वॉश के टॉप खिलाड़ी शरीक होंगे। मजमूई तौर पर $2,43,000 की इनामी रकम तकसीम होगी। कराची ओपन पिछले 23 साल में होने वाला पाकिस्तान का महंगा तरीन इवेंट है।